السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ ومن والاه ومن اهتدى بهداه وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون۔ یہ سورہ قصص ہے اور جو 6 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ اس کا مقدمہ بھی ہے اور خلاصہ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں، ہم آپ پر موسیٰ اور فرعون کی خبر میں سے کچھ حق کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یقیناً فرعون نے سرزمین مصر میں سرکشی اختیار کی اور اس نے وہاں کے باشندوں کو مختلف کیٹیگری اور گروہ میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک جماعت کو اس نے بالکل کمزور بنا رکھا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، بلا شبہ کو بڑا فساد پیدا کرنے والا تھا۔ اور ہم نے چاہا کہ ان لوگوں پر احسان کرے جو زمین میں نہایت کمزور بنا کر رکھے گئے، اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا اور وارث بنا دیا، اور ہم نے انہیں زمین میں اقتدار و حکومت بخش دی، اور فرعون کو، حامان کو، ان کے لشکروں کو اس قوم سے وہ چیز دکھا دی جس سے وہ ڈرا کرتے تھے۔ اس صورت میں یہ بیان ہوا ہے کہ فرعون سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا، اور بنو اسرائیل سے زیادہ مظلوم کوئی کمزور تاریخ میں نہیں ہوئی ہے۔ لیکن اس انتہائی ظالم کا ظلم، زمین پر اس کی سرکشی، اس کا تکبر، اس کی حکمرانی، اس کا اقتدار، یہ ساری چیزیں مل کر کے بھی اسے اس بات سے بچا نہ سکی کہ جب مظلوم کی بددعاؤں نے اثر کیا تو پھر نہ صرف یہ کہ اس ظالم کو دریا بر ہونا تھا، بلکہ اس کی حکومت، اس کا اقتدار، اس کی سلطنت سب دھیرے دھیرے کر کے مظلوم قوم کو منتقل کر دی گئی۔ اصل میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ آج مکہ میں یا کبھی بھی دنیا کی کسی بھی گوشے اور خطے میں اگر کوئی ظالم ہے اور وہ اپنی طاقت، قوت، اقتدار کے زور پر کمزوروں کو ستا رہا ہے اور ان پر ظلم کر رہا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں، بلکہ اس کے اوپر بھی ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے جو کبھی بھی اس قوت کو دنیا کی ختم کر سکتی ہے، اور کمزور اور مضبوط لوگوں کو صاحب اقتدار اور صاحب قوت بنا سکتی ہے۔ ساتھ ہی یہ پیغام دینا بھی مقصود ہے کہ حالات کتنے بھی مشکل ہو، پریشانی کتنی بھی بڑی ہو، ہمت نہیں ہارنا چاہیے،
घबराना नहीं चाहिए, डर जाना चाहिए, लगे रहना चाहिए। एक ना एक दिन हालात बदल जाते हैं और साहिब इख्तिलाफ को कुर्सी छोड़नी पड़ जाती है। आगे अल्लाह ताला ने ये भी बशारत दी है कि न सिर्फ जालिम से उसका इख्तियार छीना गया, बल्कि मजदूर को कुर्सी इख्तियार पर बिठा दिया गया। फिरौन के मुकाबले में बनु इस्राइल की कोई हैसियत नहीं थी, न उसकी कुव्वत और ताकत के मुकाबले में इनके पास कोई कुव्वत और ताकत थी। वो सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी और अल्लाह का फज़ल था। अल्लाह को इनके मजबूत होने पर रहमाया और अल्लाह ताला ने ऐसे असबाब बनाए जिसकी बुनियाद पर फिरौन गिर गया और बनु इस्राइल साहिबे इख्तियार हो गए। कामयाब करने वाली जात, कमजोरों को ताकत बख्शने वाली जात हमेशा से जिंदा है, हमेशा रहेगी। वो रात सब कुछ देख रही है, सात आसमानों के ऊपर अर्श पर बैठ करके, इसलिए उसकी सब पर नजर है। कोई भी किसी भी वक्त अपनी ताकत और कुव्वत के घमंड में अगर मजलूमों पर जुल्म और ज्यादती करता है तो एक ना एक दिन उसको भी ढा दिया जाता है। वो ख्वाह कोई फर्द हो, कोई सोसाइटी और समाज हो या कोई मुल्क और इख्तियार ही क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसको भिड़ना ही होता है। तारीखी रंगे से देखें तो फिरौन कोई एक शख्स नहीं है, बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 4000 साल पहले मिस्र में फराइना की हुकूमत की शुरुआत होती है और सिकंदर आजम के वक्त तक कुल 31 हुक्मरान फिरौन के नाम से गुजरे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दो फराइना का दौर मिला। एक वो फिरौन जिस फिरौन ने हजरत मूसा को अपने घर में पाला पोसा बड़ा या जवान किया, मौजूदी उसका नाम रामसीस II जिक्र करते हैं। और दूसरा वो फिरौन जिसके जानिब हजरत मूसा को नबी और मजदूर बना करके भेजा गया, उसको इंतकाम के नाम से जिक्र करते थे। तो ये दो शख्सियतों का है और फिरौन कोई शख्सियत नहीं है बल्कि एक मनसब है। वैसे ही जैसे तुर्क के बादशाह खाकान कहलाते थे, यमन के बादशाह तुर्बा कहलाते थे, रूम के बादशाह हरक़ल कहलाते थे, हबशा के बादशाह नजाशी कहलाते थे, ईरान के बादशाह किस्रा कहलाते थे, वैसे ही मिस्र के बादशाह फिरौन कहलाते थे। लेकिन फिरौन जो हजरत मूसा के दौर में हुए लोग इस कदर जालिम थे कि बाद में फिरौन का लफ्ज़ जालिम और जाहिर के माने में इस्तेमाल होने लगा। जिस तरह से हिटलर बोल करके लोग जुर्म और जबर की तरफ इशारा करते हैं, वैसे ही फिरौन एक जालिम और जाहिर कुव्वत का इख्तियार और इशारा बन गया। कुरान मजीद में अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा अंबिया में जिस नबी का जिक्र आया है और सबसे ज्यादा जिस कौम का जिक्र आया है वो कौम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम और वो नबी मूसा अलैहिस्सलाम है। मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद की 114 सूरतों में से 27 सूरतों में है और मूसा, फिरौन, हारून, बनु इस्राइल के तज़किरा 514 मरतबा है। किसी का इतना तज़किरा नहीं है। 25 सूरतों में 114 बार हजरत मूसा का नाम आया है। 11 सूरतों में हजरत हारून का नाम 14 मरतबा आया है। सबसे ज्यादा तज़किरा इसलिए है क्योंकि इस उम्मत के अहवाल वैसे ही एक जमाने में बल्कि मुख्तलिफ जमाने में मुख्तलिफ फिरौनों से इस उम्मत का साबका पढ़ने वाला था। इसलिए हजरत मूसा और बनु इस्राइल और फिरौन के मुख्तलिफ वाक़ियात को मुख्तलिफ जगहों पर अल्लाह ने मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया है। इस सूरत का नाम कसस है और कसस का माना बयान होता है। असल में इस सूरत में हजरत मूसा के वाक़ये को जिस तरतीब से बयान किया गया है वो तरतीब कहीं और नहीं है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जिक्र किया है कि हम मूसा और फिरौन का जो वाक़या बयान कर रहे हैं ये कोई किस्सा और कहानी नहीं है, ये सच्चा वाक़या है, अफसाना नहीं है, किस्से कहानियां नहीं है, बल्कि ये सच्चा वाक़या है।
اور ہم بیان اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ایمان والے اس سے عبرت پکڑے. ایمان والوں کی عبرت کے لیے یہ ہے. اور پھر واقعہ شروع کیا ہے اللہ رب العزت نے کہ سرزمین مصر میں فرعون نے سرکشی اختیار کی, اپنے آپ کو بڑا بن بیٹھا, اور اس کے نتیجے میں اس نے کیا کہ مصر کے باشندوں کو اس نے مختلف گروہوں اور طبقات میں تقسیم کر دیا. ویسے ہی مصر کی مٹی اور مصر کی تاریخ اور مصر کے مذاہب ہندوستان سے تقریباً ملتے جلتے. جس طرح سے ہندوؤں کے یہاں مختلف طبقات ہیں, کوئی برہمن ہے تو کوئی چھتری ہے تو کوئی شودر ہے تو کوئی ویش ہے, ایسے ہی فرعون نے مصر میں طبقات میں تقسیم کر رکھا تھا اپنی پرجا کو اور اپنی جنتا کو مختلف طبقات میں, اور اس طبقات میں تقسیم کی بنیاد پر ہی وہ حکومت کرتا تھا. کچھ طبقات کو تبتیوں کو اس نے ہائی فائی لیول میں رکھا اور ان کو وعاد دے دی, ان کو اپنا ہمنما بنا دیا اور اس کے اندر بھکت ہو گئے. اور بنو اسرائیل کو اس نے شودر کا درجہ دے دیا. ہر گرا کچلا کام, محنت مزدوری کا کام, ہر نیچا کام ان سے, خدمت کا کام ان سے, محنت مزدوری کے کام ان سے, یہ لینا اس کا کام تھا. اور صرف یہی نہیں بلکہ اس نے ایک زمانے میں, چونکہ مصر کی تاریخ میں کئی ناحیوں سے ہندوستان سے مطابقت ہے, مصر میں گائے کی پوجا ہوتی تھی, یہاں پر بھی ہوتی ہے. مصر میں گائے کی پوجا ہوئی تھی, جیسا کہ حضرت موسیٰ کے ذکر میں 2 مرتبہ گائے کا ذکر آتا ہے. ایک مرتبہ تو جب قوم کے لوگوں نے ایک گائے ایک بچہ بنا لیا تھا, پوجا شروع کر دیا تھا, اور دوسرے اسی گائے کی عقیدت کی وجہ سے جب یہ قتل ہوا تھا بنو اسرائیل میں, تو حضرت موسیٰ نے اس گائے کی قربانی پیش کرنے کا جب کہا تو پھر وہ آناکانی کرنے لگے, وہ مختلف طرح کے ہیلے بہانے تلاشنے لگے, کیونکہ تبتیوں کے ساتھ رہتے رہتے ان کے اندر بھی گائے کا تقدس اور گائے کی عزت اس کے یہاں شرائط کر چکی تھی, جو بھی اس کی تقدس کے قائل ہو چکے تھے. تو اس طرح سے ہی ان کے یہاں مطابقت تھی. ایک مطابقت اور تھی کہ طاقتور کی پوجا, یہاں پر بھی ہر طاقتور کی پوجا, اور نہ صرف طاقتور کی پوجا بلکہ بہت سارے معبودوں کی پوجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی نہ صرف فرعون اپنے آپ کو رب الاعلیٰ کہتا تھا, بلکہ اسی میں فرعون کے حواریوں کا اور عمرہ کا یہ ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے فرعون سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ تم موسیٰ کو چھوڑ دے گے, حالانکہ اس نے آپ کی پوجا چھوڑ رکھی ہے اور آپ کے معبودوں کو بھی چھوڑ رکھا ہے. کئی معبود جیسے وہاں پوجے جاتے ہیں ویسے ہی وہاں پوجے جاتے تھے. وہی اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلاتا تھا اور دوسرے معبودوں کی پوجا بھی کرایا جاتا تھا. یہ وہاں کے حالات تھے. اور اس نے جو قتل کی پلاننگ کی اس کا یہاں پر ذکر آیا ہے. عام طور پر بنو اسرائیل کے قتل کے سلسلے میں مفسرین جو یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے خواب دیکھا تھا, اس لیے جو ہے یہ بتا دیا تھا کہ تمہارا اتنا بچہ پیدا ہوگا مسکین دے گا, اس لیے قتل کی پلاننگ کی نہیں. صحیح بات یہ ہے, راجع بات یہ ہے, قرآن کے سیاق و سباق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل میں بنو اسرائیل جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر گئے تھے, حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے زمانے کے بیچ میں 400 سال کا فاصلہ ہے. اس 400 سال کے فاصلے میں ایک تو حضرت یوسف کے دور سے بنو اسرائیل کو مصر میں اقتدار ملا تھا, وہ حکومت میں آئے تھے اور سالوں حکومت کی, ویسے ہی جیسے ہم نے یہاں پر 1000 سال حکومت کی, ویسے ہی مصر کے آنے کے بعد انہوں نے وہاں صدیوں حکومت کی. اور پھر ان کی بدعملی کی وجہ سے, ان کے ایمان کی خرابی, ان کے عمل کی خرابی, ان کے عقائد کی خرابی, ان کے معاملات کی خرابی, ان ساری خرابیوں کی سزا یہ ملی کہ اقتدار ان سے چھین کر کے تبتیوں کو دے دیا گیا, جیسے ہم سے چھین کر کے ان کو دے دیا گیا. 1000 سال ہم نے اقتدار پہ, ہمارے اعمال ایسے تھے, ہمارے حکمرانوں کے اعمال ایسے تھے کہ ہم سے اقتدار چھین کر کے ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا. تو ان کو یہ ڈر ستایا کہ ان کو 400 سال کے بعد جیسے ہمارے فلون کو ستا رہا, ہمارے فلون کو یہی ستا رہا ہے کہ یہ ان کا مسئلہ بتاؤ, ان سے دھمکاؤ, ان کی تعداد بڑھ رہی ہے.
फिरौन को भी यही बताया था कि इनकी तादाद अगर बढ़ती रही ऐसे ही तो एक दिन फिर ये खुदा में आ जाएंगे। हमारे फिरौन लोग वो भी यही कहता है ना, ये उसकी पार्टी सारे सभी कहते हैं भाई ये खुदा में किसी दिन जा सकते हैं। तो जब उसको यही डर था, और यही आप देखेंगे कि इस डर की वजह से पहले उसने ये प्लानिंग की कि सारे बच्चों को कत्ल कर दिया जाए, सारे लड़कों को कत्ल किया जाए, औरतों को छोड़ दिया जाए। लेकिन जब ये मुद्दत तक लड़के कत्ल किए गए तो फिर यही बनी इसराइल के लोग भी मेहनत वाले सारे काम करते थे, तामीराती काम जितने हैं, नहरों के काम, कुओं के काम, दरियाओं के काम, बंद बांधने के काम, इसी तरह से अहराम जो आप देखते हैं उसकी तामीर के काम सब यही करते थे। मेहनत वाले सारे काम उनसे लिया जाता था। तो अब मजदूरों की कमी हो गई। अब मजदूरों की जो बचे इसराइल के या तो दूल्हे लोग थे या औरतें थी, तो फिर उसकी काबीना ने हामान और दुआओं में मिल करके ये रेजोल्यूशन पास किया कि ऐसा करते हैं कि अगर ये सब खत्म हो गए तो हमारे काम कौन करेगा। इसलिए 1 साल इनके लड़कों को जिंदा रखा जाएगा और 1 साल मारा जाएगा। हजरत हारून की पैदाइश उस साल हुई जिस साल बच्चों को जिंदा रखा जाता था। 1 साल हजरत हारून हजरत मूसा से करे, जबकि हजरत मूसा की पैदाइश उस साल हुई जिस साल बच्चों को कत्ल किया जा रहा था। और यही वजह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नबी बनाए जाने के बाद भी जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, मरियम से नबूवत का जो है नबूवत का हवाला दिया और अपनी तालीमात पेश की, तो दोबारा फिर यहूदी नाफिज हुआ। इस जमाने के बाद उसका भी जिक्र है, बल्कि हजरत मूसा से उसकी कौम ने कहा कि हमें आपके आने से पहले भी अजियत की जा रही थी और आपके आने के बाद भी यही मुकाबला है कि हमारे बच्चों को कत्ल कर दिया जा रहा है, आपके आने से तो हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। तो बस मसला उसके साथ भी यही था कि बनी इस्राइल की बढ़ती हुई तादाद हमारे इक़्तिदार के लिए खतरा बन सकती है, इसलिए इनके नौजवानों को, इनके बच्चों को कत्ल कर दिया जाए, इनकी तादाद एक हद से ज्यादा करने ना पाए। उसी का यहाँ पर जिक्र किया है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि उसने ये प्लानिंग की ये इक़्तिदार को बचाने के लिए कि बच्चों को कत्ल किया जाए, बच्चियों को छोड़ दिया जाए। लेकिन उसकी तकदीर, उसकी चालें अपनी जगह। हमने क्या चाहा, अल्लाह ताला कह रहा है लेकिन हमारा इरादा क्या था, हमने जो कमजोर थे, जो इस्राइल थे, उन पर एहसान करना चाहा। वो मजलूम थे, हमने उन मजलूमों की दुआएं सुनी और उन पर एहसान करना चाहा, और फिर एहसान नहीं करना चाहा और हमने उन्हें जमीन पर पेशवा कायद और लीडर हुक्मरान बनाना चाहा। और हमने उनको इन फराइना की इक़्तिदार का वारिस बनाना चाहा, इक़्तिदार हमने मुंतकिल करना चाहा। लेकिन आप देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये प्लानिंग ऐसा नहीं है कि एक दिन में हजरत मूसा मरियम से आए हो और दावत शुरू की हुई और साल 2 साल के अंदर इक़्तिदार चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तो मिस्र छोड़ना पड़ा, मिस्र छोड़ करके वो गए। उसके बाद यूशा बिन नून ने अमानता को फतह करके कुछ इक़्तिदार को हासिल किया, लेकिन पूरा कंट्रोल पूरे इलाके पर वो जाकर के हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में हासिल हुआ। तो 1-2 साल में ये मसाइल हल नहीं होते हैं कि आज हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हम पर ज्यादती हो रही है, हम मजलूम हैं और दबाए जा रहे हैं, तो 1 साल में 2 साल में हम कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं है। सब्र के साथ जब करके काम करने की जरूरत होती है और हालात के जब का मुकाबला करना पड़ता है। आप देखेंगे कि इसमें कितना वक्त लगा अल्लाह ताला की प्लानिंग में, कि अल्लाह ताला ने उसके बाद उसी पूरी प्लानिंग का जिक्र किया है कि फिर जो है हजरत मूसा की पैदाइश हुई, पहले उसकी मां को वही किया कि उसको खूब खिलाओ, जब डर होगा तो उसको दरिया के हवाले कर देना, दरिया में गए और नहर में गए, वहां पले बढ़े, 30 साल के हो गए तो एक कत्ले नाहक उनके हाथ से हो गया, मुजरिम ठहरे, पुलिस ने तलाश करना शुरू किया, डर के भागे मदीना गए, 10 साल मजदूरी की, शादी हुई, वापस आए तो से हुकूमत मिली, फिर आए अपने भाई हारून को लिया और जाकर के मूसा और हारून दोनों ने अल्लाह ताला ने कहा कि दवा इला फिरौन फक़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, दोनों जाओ और
नर्म अंदाज से उससे गुफ्तगू करो, दावत शुरू करो, प्यार से समझाने की कोशिश करो। जंग पहले नहीं कही, अल्लाह ताला ने जंग लड़ने का हुक्म नहीं दिया, कहा शायद वो नसीहत हासिल कर ले, शायद कर जाए। तो ये अल्लाह ताला ने इस तरह से पूरा काम किया कि ये हुक्म दिया कि जाओ दावतों तबलीग शुरू करो, और एक लंबी मुद्दत दावत का काम किया मेरे भाइयों ने। दावत किया, नारा किया, मुआवजा किया, मुकाबला किया, जादू थे, मुकाबले में शिकस्त भी जादूगर, लेकिन नतीजा क्या निकला? सिवाय जादूगर और चंद कीमती नौजवानों के कोई कीमती इस्लाम नहीं लाया। चंद जुहरिया कहलाया है, चंद नौजवान थे, और उसकी वजह भी अल्लाह ताला ने लिखी है कि फिरौन के डर की वजह से। फिरौन का जुर्म इस कदर था कि जब जादूगरों ने इस्लाम कबूल किया तो उनका हुक्म जारी हुआ कि इनको सूली दी जाए और इनके एक पैर और एक हाथ मुखालिफ, मतलब दायां पैर काटा जाए तो बायां हाथ काटा जाए, बायां पैर काटा जाए तो बायां हाथ काटा जाए। ये फैसला हुआ, लेकिन वो जादूगर जिनके दिल में ईमान बढ़ गया, वो तफक भी मारता था, उनने तफक भी की हार सिखाया, उसको दो फैसला करना हो। इस दुनिया का तुम फैसला कर सकते हो, लेकिन आखिरत का फैसला तुम्हारे हाथ में नहीं है। उन्होंने बोला आपको ये कर लिया, तो इस डर से सिर्फ चंद नौजवान थे, बूढ़े लोग जल्दी नहीं तो करते, उनके अंदर बैठ जाती है बातें। इस जंग लग जाए उसको छूटने में बहुत टाइम लगता है, नौजवानों के अंदर जज्बा होता है, इसलिए वो जल्दी कोशिश भी करते हैं, और फिर उनके साथ जलते के साथ खड़े भी होना उनके अंदर होता है, और बुजुर्गों को समझाना टाइम भी लगता है, और उनको मुकाबले के लिए खड़ा होना भी उनके लिए दुश्वार होता है। तो ये मामला पूरा हुआ एक बहुत लंबा वक्फा है। इस वक्फे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े प्यार से, बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से न सिर्फ फिरौन का मुकाबला किया, फिरौन के जल का मुकाबला किया, बल्कि अपनी कौम को भी संभाल करके रखा, क्योंकि इनकी कौम भी कदम कदम पर डगमगाती थी, कदम कदम पर पीछे हटा लेती थी। हजरत मूसा कुछ कहते थे, उनकी राय कुछ होती थी। उसका भी ईमान बहुत यकीन था, कहीं वो बछड़े की पूजा करनी शुरू कर देती थी, कभी खुद हजरत मूसा की जात पर जो है तोहमत लगा देती थी। तो ये बड़ी खराब दौर थी, दोनों तरफ से हजरत मूसा का मुकाबला था, और मूसा अलैहिस्सलाम ने इन हालात का दम करके मुकाबला किया। बसा औकात हजरत मूसा को धमकी भी मिली, और फिरौन ने कहा अगर तुमने मेरे अलावा किसी और को मामूल बना लिया तो मैं तुम्हें कैद में डाल दूंगा। लेकिन धमकियों पर हजरत मूसा पर और हजरत हारून पर कोई असर नहीं हुआ, और धमकी नहीं मिली। जैसे आजकल दहशतगर्दी का इल्जाम लगा करके कैदबंद में डाल दिया जाता है, दहशतगर्दी का इल्जाम भी लगा, चुनांचे वकालत ये इल्जाम किन लोगों ने लगाया? फिरौन के उमरा ने, फिरौन के उमरा ने इल्जाम लगाया और कहा फिरौन से कि तुम मूसा को उसकी कौम को छोड़ दोगे कि ये जमीन में दहशतगर्दी फैलाते थे। इस तरह की बातें भी आई कि किसी तरह से हजरत मूसा की दावत को रोका जाए और उस पर कैदबंद लगाया जाए। इस धमकी से भी जब बात नहीं बनी तो दोबारा फिर हुक्म सादे हुआ कि इनके बच्चों को फिर कत्ल करना शुरू किया जाए, मर्दों को फिर कत्ल करना शुरू किया जाए। उस पर कौम ने हजरत मूसा से शिकायत भी की और कहा आप तुम्हारी पैदाइश से पहले भी हम पर यही जुर्म होता था, हमारे बच्चों को कत्ल कर दिया जाता है, और तुम्हारे नबी होने के बाद भी हमारे ऊपर जुर्म हो रहा है, हमारे बच्चों को कत्ल कर दिया जा रहा है। इन तमाम के जवाब में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सब्र और तवक्कुल की तरकीब की। अपनी कौम से कहा कि हजरत मूसा ने अपनी कौम से अल्लाह से मदद मांगो, और अल्लाह से मदद मांगने का सबसे बेहतरीन तरीका नमाज है। हजरत अनस कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अनस कहते हैं कि अल्लाह के रसूल को जब कोई परेशान करती थी बात तो फौरन नमाज पढ़ते थे। नमाज के जरिए से अल्लाह की मदद, अल्लाह ताला ने खुद कुरान में कहा है इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र के जरिए से और नमाज के जरिए से अल्लाह की मदद करो, मदद करो। हजरत मूसा ने भी कहा कि अल्लाह की मदद, अल्लाह से मदद मांगो, और दूसरे सब्र से काम लो,
اور सब्र करके डटे रहो। और एक हकीकत की तरफ इशारा किया कि इन्नल अर्द लिल्लाह, ये हुकूमत जमीन का इख्तियार, ये सारी जमीन सब अल्लाह की मिल्कियत है। वो जब चाहे जिसको चाहे जमीन का इख्तियार दे सकता है, तुम्हारा बाल होता है। आज किस फिरौन को बना रखा है, कल हमें बना सकता है। आज ये इख्तियार में है, कल हम इख्तियार में हुए। 1000 साल हमने हुकूमत की है, आज इसको इख्तियार अल्लाह ने दिया है। हो सकता है आने वाला कल फिर हमारा इख्तियार पा जाए। तो अल्लाह ताला ही इख्तियार को उलटता पलटता है, हालात को तब्दील करता रहता है। कभी ये आजमाइश होती है, कभी इम्तिहान होता है, कभी सजा होती है हमारे लिए। ये हमारे अमाल के एतबार से सारी चीजें होती रहती है। और हजरत मूसा ने कहा कि या कौमी इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि फअलैहि तवक्कलू, अगर तुम्हें अल्लाह पर यकीन है, ईमान है, तो उस पर भरोसा रखो, अल्लाह पर भरोसा रखो। अगर तुम मुसलमान हो, बनी इस्राइल ने हजरत मूसा की नसीहत कबूल भी की और इकरार के साथ 2 दुआएं लाज़िम पकड़ ली। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कहीं पर भी कोई भी मजलूम और कमजोर हो, सताया जा रहा हो, बहैसियत फर्द, एक आदमी तन्हा या पूरी कौम और पूरी जमात और पूरी बस्ती को सताया जा रहा हो, वो अगर इन दुआओं को लाजिम कर ले तो फिर अल्लाह हमारा रास्ते आसान कर देता है। उन दुआओं का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने उसको फरमाया है कि फ़क़ालू अलल्लाहि तवक्कलना रब्बना ला तजअलना फितनतल लिलक़ौमिज़ ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। इनकी कौम ने क्या कहा? हमने अल्लाह पर भरोसा किया, रब्बना ला तजअलना फितनतल लिलक़ौमिज़ ज़ालिमीन, हमारे परवरदिगार जालिम कौम के लिए हमें फितना न बना। फितना न बनाने का 2 माना है। फितना न बनाने का एक माना यह है कि इसको फितने में न डाल, कि ये हम पर जुल्म करे और सताए, तो इसका इख्तियार बना रहे और ये अपने आप को इसीलिए हम पर समझे कि देखो हम सताने के बावजूद, जुल्म करने के बावजूद हम बहुत खुशहाल हैं। तो इस वजह से और इस तरह से भी फितना न बना कि हमें फितने में न डाल दे, यानी ऐसा ना हो कि इनके जुल्म से, इनकी ज़ाहिरी से तंग आकर के हम फितने इर्तिदाद का शिकार हो जाए। जैसा कि आजकल बहुत सारे इलाकों में मुसलमान हो रहे हैं इर्तिदाद का शिकार। वक्ती फितना और वक्ती आरवाई तो दोनों ही बातें यही होते लोगों में कि हमें जालिमों के लिए फितना ना बना, ना तो उनके लिए फितना हो कि वो इस जुल्म की वजह से अपने आप को हक पर समझे, और ना हमारे लिए फितना हो कि हम उनके जुल्म से टकरा करके वाले हमसे हट जाएं। और ऐ मेरे परवरदिगार, अपनी रहमत से इस जालिम और काफिर कौम से हमें निजात दे दे। इस दुआ को हर मजलूम को लाजिम पकड़ लेना चाहिए, फिर अल्लाह ताला रास्ते आसान फरमा देता है। ये पूरा वाकया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सूरह में जिक्र किया है कि किस तरह से अल्लाह ताला ने फिरौन से उसका इख्तियार छीना। न सिर्फ उसकी मौत हुई, बल्कि धीरे धीरे की पूरी कौम ही से इख्तियार छीन करके बनी इस्राइल के पास आ गया। हमें भी अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, सब्र से काम लें, अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह से दुआ करते रहें, हालात के बदलने का इंतजार करें, उम्मीद का दामन न छोड़े। यही हमारे लिए सही रास्ता है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।